Hello students. In the previous lecture we discussed about interfacing output displays. आउटपुट डिस्प्लेस को कैसे इंटरफेस करते हैं इसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था लास्ट लेक्चर में. और in order to interface the output displays we have taken the example of this diagram, that is interfacing LED output port for binary data. So we understood and we analyzed this circuit which is used to display the binary data. Then we have seen this example also, that this 7475 latch or this octal latch can be used as interfacing device because both are similar in function. And how to complete its interfacing, we also have to write the program. So we also went through this programming. So we have understood how to interface the LED as output port for binary data. Now let us consider the next problem. The problem is design a 7-segment LED output port with the device address F5H using a 3 to 8 decoder, a 4-input NAND gate, a NOR gate, and a common anode 7-segment LED. And also write the instructions to display digit 7 at the port. As we know that the interfacing process includes the hardware part, that is to design the hardware components to interface, and also write the program to complete the interfacing process. So in this problem we have to interface a 7-segment LED output port, okay, by using all this which is mentioned in this problem. And also we have to write the instructions. And for क्या होगा instructions, digit 7 को display कराने के लिए instructions को लिखना है. ठीक है, तो first of all we have to use this LED 7-segment LED. 7-segment LED यहाँ पर एक टर्म आया है, और बाकी जो टर्म्स हैं डिकोडर, 4-input NAND गेट, NOR गेट, इन सबसे हम फैमिलियर हैं. We already know what is the functioning of these devices, but this common anode 7-segment LED, इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि कैसे ये क्या है और कैसे काम करता है. तो if you talk about 7-segment LED, then 7-segment LED, that is 7-segment light emitting diode, consists of 7 LED sections and 7 LED segments, actually 7 LED segments and 1 segment for decimal point. Okay, 1 segment for decimal point. And it can be represented like this. यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया एक 7-segment LED को. ओके, तो और these 7 segments are named as A, B, C, D, E, F and G. तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अगर किसी नंबर को डिस्प्ले कराना है, तो टू डिस्प्ले अ नंबर, all the necessary segments must be activated or must turned on or must be lit. अगर किसी नंबर को डिस्प्ले कराना है तो उस नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए जो नेसेसरी सेगमेंट्स हैं उनको ऑन करना होगा, उनको एक्टिवेट करना होगा. और ये कैसे होगा? बाय सेंडिंग एप्रोप्रिएट सिग्नल्स with the help of which the current will flow through the diode and that segment will be activated. तो इस तरह से ये काम करता है. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर डिजिट 1 को डिस्प्ले कराना है, तो डिजिट 1 को डिस्प्ले कराने के लिए कौन कौन से सेगमेंट्स ऑन होने चाहिए?
तो सेगमेंट बी और सी ऑन होना चाहिए। अगर डिजिट 8 को डिस्प्ले कराना है तो 8 को डिस्प्ले कराने के लिए कौन कौन से सेगमेंट्स ऑन होने चाहिए? 8 को डिस्प्ले कराने के लिए ऑल द सेगमेंट्स शुड बी लिट, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, सारे सेगमेंट्स एक्टिवेट होने चाहिए या ऑन होने चाहिए। और ये सेगमेंट्स कैसे ऑन होंगे? अप्रोप्रिएट सिग्नल्स को सेंड करके, जिसकी हेल्प से डायोड से करंट फ्लो होगा। तो अप्रोप्रिएट सिग्नल से ये सेगमेंट्स ऑन हो जाएंगे। ओके, तो अब अगर हम जैसे अगर हम बात करें कि एलईडी जो 7 सेगमेंट एलईडी है वो कितने टाइप्स की होती है, तो ये 7 सेगमेंट एलईडी जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है कॉमन एनोड, कॉमन एनोड 7 सेगमेंट एलईडी एंड कॉमन कैथोड, कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट एलईडी। तो ये दो तरह की एलईडीज होती हैं। 7 सेगमेंट एलईडी दो तरह की होती है, कॉमन एनोड एलईडी एंड कॉमन कैथोड एलईडी। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इसमें कॉमन एनोड 7 सेगमेंट एलईडी का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन एनोड 7 सेगमेंट एलईडी। तो सपोज, अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि जो सारे सेगमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, ये सेगमेंट्स डेटा लाइंस से कनेक्टेड होते हैं। डेटा लाइंस दैट इज D0 to D6। तो जो ए सेगमेंट होगा D0 से कनेक्टेड होगा, बी D1 से कनेक्टेड होगा। सिमिलरली द 7 segments are connected to the data lines from D0 to D6। और ये जो डेसिमल पॉइंट है, if this decimal point is being used then it will be connected to data line D7, otherwise it can be left open। अच्छा, किसी पर्टिकुलर डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए क्या बाइनरी कोड होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो एलईडी यूज हो रही है वो किस टाइप की यूज हो रही है। कॉमन एनोड एलईडी यूज हो रही है कि कॉमन कैथोड एलईडी यूज हो रही है। जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें टू डिस्प्ले 7 एट द एलईडी एज इन फिगर। कौन से फिगर की बात हो रही है? इस फिगर की बात हो रही है। इस फिगर में, ये जो फिगर है इसमें दिया हुआ है कि अगर 7 डिजिट को डिस्प्ले कराना है, 7 को डिस्प्ले कराना है, तो इसके लिए बाइनरी कोड क्या होना चाहिए? तो बाइनरी कोड क्या होना चाहिए 7 को डिस्प्ले कराने के लिए? तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे 7 को डिस्प्ले कराना है तो 7 के लिए सेगमेंट ए, बी और सी ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो सेगमेंट ए, बी और सी किससे कनेक्टेड हैं? आपको बताया मैंने पहले कि ये डेटा लाइन से कनेक्टेड है। सेगमेंट ए जो है वो D0 डेटा लाइन से कनेक्टेड है, बी D1 से और सी D2 से कनेक्टेड है। तो इनको ऑन करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो एलईडी यूज हुआ है वो किस टाइप का है, कॉमन एनोड है कि कॉमन कैथोड है। देखते हैं किस टाइप का है। तो ये यहाँ पे जो एलईडी यूज हुआ है दैट इज कॉमन एनोड 7 सेगमेंट एलईडी। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि सारे एनोड जो हैं इसके कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये 7 सेगमेंट एलईडी जो है वो कॉमन एनोड टाइप का है, ठीक है। तो इसमें अगर किसी एलईडी को एक्टिवेट करना है, ऑन करना है, तो उसके लिए वहाँ पर लो सिग्नल देना होगा। तो हमें ए, बी और सी को एक्टिवेट करना है। उसके लिए ए और बी और सी पे क्या होगा? 0 0 0 वैल्यूज देना होगा, बाकी सारे पे वंस। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए D0, D1 और D2 जो कि यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ये देखिए D0, D1 और D2, ठीक है। इन पर 0 0 0 लो लेवल अप्लाई किया गया है और बाकी सारे पर 1 1 1 1। तो इस तरह से क्या कोड बनेगा इसका? ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं D6, D5, D4, D3, क्योंकि ये जो D7 है वो तो डेसिमल पॉइंट से कनेक्टेड है। तो D0 से अगर D6 की बात करें तो क्या कोड बनेगा? ये हो जाएगा 7 और यहाँ से D3 से D0, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा 1000 का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? 8 होगा
ये 111 का इक्विवेलेंट D6, D5 और D4, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट तो 7 हो गया। बाकी अगर D3 से बात करें, D0 to D3, तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो 1000 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा 8। ओके, तो इस तरह से जो बाइनरी कोड है वो कितना है? 78H। टू डिस्प्ले टू डिस्प्ले डिजिट 7 with the help of this arrangement, the binary code will be, what will be the binary code? 78H। तो बाइनरी कोड इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द बाइनरी कोड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इंटरफेसिंग सर्किट की अगर बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एक बार फिर से रीड करिए। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि डिकोडर का यूज करना है। अभी तो हमने सिर्फ एलईडी के बारे में समझा कि एलईडी जो है उसकी वर्किंग क्या है, कितने टाइप की है, 7 सेगमेंट एलईडी की बात की हमने। अब इसमें इस इंटरफेसिंग सर्किट में क्या क्या यूज करना है? डिकोडर यूज करना है, नैंड गेट यूज करना है, नॉर गेट यूज करना है, और कॉमन एनोड 7 सेगमेंट एलईडी। ठीक है, तो ये तो इंटरफेसिंग सर्किट के लिए रिक्वायरमेंट्स हो गई। एंड व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द आउटपुट पोर्ट? एड्रेस क्या रखना है? डिवाइस एड्रेस या आउटपुट पोर्ट का एड्रेस क्या रखना है? F5H। ठीक है, तो F5H हमें रखना है एड्रेस। तो ऐसा आउटपुट पोर्ट डिजाइन करना है जिसका एड्रेस F5H हो। तो उसके लिए एड्रेस लाइंस पर क्या होना चाहिए? तो अगर एड्रेस होना चाहिए F5H, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, तो एड्रेस लाइंस A0 से A7 पर क्या वैल्यू होना चाहिए? अकॉर्डिंगली वैसे ही वैल्यूज रहेंगी, क्योंकि F है तो F के लिए अगर हम 5 लें यहाँ पर, तो 5 के लिए A0, A1 और A2 पे क्या होगा? 1 0 1, और A3 पे भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और अगर F की बात करें तो F के लिए क्या होता है? 1 1 1 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर अ, अगर यहाँ पर आउटपुट पोर्ट को एड्रेस अगर रखना है F5H, तो एड्रेस क्या होना चाहिए? लाइंस पर ऐसे होना चाहिए, A0 पर 1, A1 पर 0, A2 पर 1, A3 पर 0, A4 पे 1, A5 पे 1, A6 पे 1 और A7 पे 1। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल हो गया किसका? ये एग्जांपल हो गया एड्रेस का, कि एड्रेस लाइंस पे क्या वैल्यूज होंगी। और यहाँ पे हमने क्या प्रीवियस लाइन यहाँ पे क्या देखा था हमने? यहाँ पर ये डिफरेंट है। यहाँ पे हमने ये सीखा था कि किसी डिजिट को डिस्प्ले कराने के लिए कैसे बाइनरी कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बिट 7, कौन सा एग्जांपल था ये? यहाँ पे 7 को डिस्प्ले कराने के लिए, तो 7 को डिस्प्ले कराने के लिए A, B और C सेगमेंट्स ऑन होने चाहिए। तो वो कॉमन एनोड 7 सेगमेंट एलईडी है, इसकी वजह से 0 0 0 होगा A, B और C पर, क्योंकि A, B और C सेगमेंट को एक्टिव करने के लिए इन लाइंस पर 0 0 0 होगा, तभी वो एक्टिवेट होंगी या तभी वो टर्न ऑन होंगी। ठीक है, और बाकी लाइंस को क्या करना है? बाकी D3 से D3, D4, D5, D6 एंड जो D7 यूज हो रहा है डेसिमल पॉइंट के लिए, इन सभी लाइंस पे 1 1 1 1 होना चाहिए। तो इस तरह से इसका जो कोड बनेगा वो कोड क्या बनेगा? 1 1 1 1 सॉरी 1 1 1 दैट इज 7 एंड 1 0 0 0 दैट इज 8। तो 7 8H। और यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया? यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया वो हमने ये कैलकुलेट किया कि कैलकुलेट नहीं, यहाँ पे बस हमने ये समझा कि जो अगर एड्रेस F5 है जो कि मेंशन्ड है प्रोग्राम में उस क्वेश्चन में, तो F5 एड्रेस के लिए हर एड्रेस लाइन पे क्या लॉजिक लेवल होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे उसको एस्टिमेट किया। ठीक है, तो हमें देखिए एक डिकोडर का यूज करना है, 3 to 8 डिकोडर का। इसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हैं? इसमें 3 इनपुट लाइंस होंगी। तो 3 इनपुट लाइंस हैं एक डिकोडर में, तो यहाँ पर एक डिकोडर का यूज कर लिया जिसकी 3 इनपुट लाइंस है, और एड्रेस लाइंस A0, A1 और A2 को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया डिकोडर के इनपुट पिन से। ठीक है,
तो एड्रेस लाइंस A0, A1 और A2 क्या हो गई, डिकोडर की इनपुट लाइंस हो गई। अब ये तो यूज A2, A1 और A0 एज इनपुट लाइंस टू द डिकोडर। ओके, देन इतनी लाइंस को हमने यूज कर लिया। इसके बाद बाकी रिमेनिंग लाइंस को यूज करना है, जो कि A3 से A7 है। अब A3 पे देखिए वैल्यू क्या है, 0 है। A3 पर वैल्यू 0 है ना, तो डिकोडर में यहाँ पर देखिए देयर आर 3 इनेबल पिंस। जो भी यहाँ पे डिकोडर क्वेश्चन में दिया हुआ है 74LS138, इसमें 3 इनेबल पिंस हैं, जिसमें से ये जो E3 वाला जो इनेबल पिन है वो हाई है, एक्टिव हाई, और बाकी 2 जो इनेबल पिंस हैं वो लो हैं। तो E1 और E2 एक्टिव लो हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें A3 को, तो A3 पे क्या सिग्नल है, लो है, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट इनेबल पिन से। E1 जो कि एक्टिव लो है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एड्रेस लाइन A3 से। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग एड्रेस लाइंस हैं, दैट इज रिमेनिंग एड्रेस लाइंस आर A4, A5, A6 and A7। A4, A5, A6 and A7। तो जो A4, A5, A6 और A7 लाइंस हैं, एड्रेस लाइंस, उसको हमने नैंड गेट के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था ना कि 4 इनपुट नैंड गेट का यूज करना था। तो the remaining address lines are connected through this NAND gate, and the output of NAND gate is connected to the E2 enable pin of 3 to 8 decoder. So in this way we have used all the address lines from A0 to A7 are used. Okay, तो ये second point हो गया connect. First point was use A0, A1 and A2 as input lines to the decoder, and the second point is connect A3 to active low enable, and third point is the remaining lines connected to E2 bar through 4 input NAND gate. So we have done all of these 3 steps. Now what is going to happen? Now the output O5 is ANDed with control signal. Are you right? Output O5 of the decoder, here we can see the output O5 of the decoder is ANDed, logically ANDed with IO write control signal using the NOR gate, that is also called as negative input AND, negative AND, to generate pulse to enable the latch. ये जो गेट है इसको नेगेटिव इनपुट एंड गेट कह सकते हैं या नॉर गेट कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के थ्रू IO M बार और राइट कंट्रोल सिग्नल का यूज करके IO राइट कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किया गया है, और इस गेट के थ्रू 74LS32 गेट के से IO राइट सिग्नल को जनरेट किया गया है, और देन the output O5 of the decoder is combined with IO write control signal through this NOR gate, and both the signals are logically ANDed, and the IO select pulse or device select pulse is generated. This device select pulse is generated, और इस IO select pulse या device select pulse के थ्रू ये लैच इनेबल हो जाएगा, और जब लैच इनेबल हो जाएगा तो whatever is available on the data lines, that is from D0 to D7, that data will be present at the output of the latch when this latch is enabled, and that data can be displayed with the help of this 7 segment LED. Okay, ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। इस तरह से 7 segment LED, ये जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज डिजाइन अ 7 segment LED
output port with the device address F5H. So we have done this. We have designed a 7 segment LED output port with the device address F5H. हमने डिवाइस एड्रेस, जो आउटपुट पोर्ट का डिवाइस एड्रेस हो वो F5H हो, उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट किया है. उसके लिए 3 to 8 डिकोडर के इनपुट लाइंस पे A0, A1 और A2 को कनेक्ट किया है, और बाकी की जो एड्रेस लाइंस हैं A3 को इनेबल पिन जो कि लो एक्टिव लो है उससे कनेक्ट किया है. बाकी की जो 4 रिमेनिंग एड्रेसेस हैं A4, A5, A6 एंड 7 उनको NAND गेट के थ्रू कनेक्ट किया है. और ठीक है, तो उसके बाद एड्रेस का ये पोर्शन हमने यहाँ से समझा था. A0, A1 और A2 पे क्या होना चाहिए? 101 होना चाहिए. यहाँ पर जब 101 होगा और A3 पर भी 0 होना चाहिए क्योंकि ये एक्टिव लो से कनेक्टेड है, 0 होगा. और रिमेनिंग लाइंस पे 111 होना चाहिए, 1111. तो इन पर जब 111 और 1 होगा तो यहाँ पर लो सिग्नल आएगा E2 पे और ये इनेबल पिन भी एक्टिवेट होगा. तो इस तरह से जो एड्रेस आएगा वो एड्रेस कितना आएगा? F5H आएगा. ये F हो गया और ये 5. तो F5 एड्रेस हमने एक ऐसे आउटपुट पोर्ट को डिजाइन किया है जिसका एड्रेस क्या होगा? F5H होगा. नेक्स्ट क्या कह रहा है? यूजिंग अ डिकोडर, 3 to 8 decoder, 4 input NAND gate, a NOR gate and a common anode 7 segment LED. So this portion of the problem has been resolved. ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. अब क्या करना है हमें? नाउ वी हैव टू राइट द इंस्ट्रक्शंस टू डिस्प्ले digit 7 at the port. Till now only the hardware portion has been done, and the remaining part of interfacing, that is इंटरफेसिंग का जो हार्डवेयर वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है. अब इंटरफेसिंग को कंप्लीट करने के लिए, मतलब डेटा का ट्रांसफ़र हो सके, टू कंप्लीट दैट प्रोसेस वी आल्सो हैव टू राइट द इंस्ट्रक्शन. एंड व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन? टू डिस्प्ले द डिजिट 7 एट द आउटपुट पोर्ट. 7 को डिस्प्ले कराना है, तो 7 को डिस्प्ले कराना है, डिजिट 7 है, तो 7 डिजिट को डिस्प्ले कराने के लिए व्हाट शुड बी द बाइनरी कोड? वी हैव already calculated what should be the binary code in order to display the 7 digit. यहाँ पे हम ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके हैं कि अगर डिजिट 7 को डिस्प्ले कराना है हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, जिसमें कि कॉमन एनोड 7 सेगमेंट एलईडी का यूज हुआ है, तो 7 डिस्प्ले कराने के लिए जो कोड आया था वो कोड क्या था? बाइनरी कोड, या हेक्साडेसिमल की बात करें तो 78H. हेक्साडेसिमल में ये कोड है 78H. This code will be used to display the digit 7 at the output port. Okay. तो ये काम बचा हुआ है. तो now we have to write the instructions. इंस्ट्रक्शंस को राइट करना होगा. देखिए इंस्ट्रक्शंस को कैसे राइट किया जाता है, कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, ये पोर्शन हम इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़ेंगे. बट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे यूज हो रहा है और कौन से इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है. इस तरह से आप इजीली इसको रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होगा. तो इंस्ट्रक्शंस में क्या करना होगा? अगर हम एक नॉर्मल प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो हमने कोड को पता कर लिया कि 7 काम क्या करना है, डिजिट 7 को डिस्प्ले कराना है. डिजिट 7 को डिस्प्ले कराने के लिए कोड क्या है? 78H है. तो जो 78H कोड है उसको पहले हम कहीं स्टोर कराएंगे प्रोसेसर के अंदर. ठीक है. तो फॉर दैट पर्पज दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. दिस इंस्ट्रक्शन MVI, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो होगा ये होगा, करेक्शन यहाँ पे है MVI. Here the instruction will be MVI. A, 1
कॉमा 78H। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन। कौन सा इंस्ट्रक्शन? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो 78H जो डेटा है, जो भी मतलब कोड है 7 डिजिट को डिस्प्ले कराने के लिए, दैट कोड विल बी लोडेड into the accumulator. A represents the accumulator. तो MVI A,78H जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? तो जो 78H जो कोड है वो कोड एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है लोड 7 सेगमेंट कोड इन द एक्यूमुलेटर। ओके, अभी तक जो भी कोड हमें डिस्प्ले कराना है वो हम एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर चुके हैं। नाउ व्हाट शुड बी डन इन द नेक्स्ट स्टेप? इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्रोसेसर उस कोड को सिलेक्टेड आउटपुट पोर्ट पर डिस्प्ले करा सके। प्रोसेसर उस कोड को जो कि एक्यूमुलेटर में है उसको सिलेक्टेड आउटपुट पोर्ट पर डिस्प्ले करा सके। तो ऐसा करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है हमारे पास 8085 में, आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस। ये जो इंस्ट्रक्शन होता है आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस। सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन out 8 bit port address। इस इंस्ट्रक्शन से क्या होता है? when this instruction is executed then content of accumulator is transferred to the output port at the कौन सा आउटपुट पोर्ट? जिसका एड्रेस यहाँ पर जिस इस इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड है। आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस है ना, तो जैसे यहाँ पर आउट F5H लिखा हुआ है, यहाँ पे F5 क्या है? F5 आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो भी कंटेंट है एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर का कंटेंट उस आउटपुट पोर्ट पर ट्रांसफर हो जाएगा जो कि इस एड्रेस पर है, जो कि F5 एड्रेस पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्ले डिजिट कंटेंट ट्रांसफर होने से क्या मतलब है? इस F5H से LED 7 सेगमेंट LED कनेक्टेड है, तो जो भी डेटा ट्रांसफर होगी वो LED के थ्रू डिस्प्ले होगी। तो डिस्प्ले डिजिट 7 at output port F5H। Then end of the program, HLT, we use HLT to indicate the end of program। okay, तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस इस तरह से लिखे गए हैं। पहले क्या हो रहा है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MVI A,78H। दिस इंस्ट्रक्शन loads 78H in the accumulator which is the code to display digit 7। then what is happening? then out F5H, तो 6 को डिस्प्ले कराने के लिए कौन कौन से सेगमेंट्स ऑन होने चाहिए? सेगमेंट A, F, E, D, C और G ऑन होने चाहिए। तो इस तरह से इसके करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑन होंगे। तो सेगमेंट A, F, E, D, C और G, इन पर क्या होगा? इन पर जो वैल्यू होगा वो लो होगा 0000 और रिमेनिंग जो कि B है उस पर 1 होगा। तो इस तरह से जो कोड होगा, जो हेक्स कोड इससे निकल के आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो जो भी किसी भी इसी तरह से किसी दूसरे डिजिट को भी डिस्प्ले कराने के लिए उसका जो करेस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड है दैट कोड विल बी चेंज्ड एंड दैट कोड विल बी यूज्ड in the instruction here MVI A comma whatever the code will be to display that corresponding device that can be changed here। okay, so in this way we can display any of the digit with the help of these instructions using this 7 segment LED interfacing।
Okay. In the next lecture, we will say about interfacing input devices. Thank you.